मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्कर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। What was the state of the Indian economy on the eve of independence? पूरे चैप्टर की समरी, पूरे चैप्टर की समरी। During the British rule, the Britishers transformed the Indian economy into a colonial, backward, semi-feudal, अभी करेंगे सारे वर्ड्स डिस्कस, घबराए ना, स्टैग्नेंट, ज्यादा बैकवर्ड हो गई, आ गया बैकवर्ड, डिप्लीटेड एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एक एक करके बात करते हैं। कॉलोनियल, इंडिया वाज अ कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, तो कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या हुआ? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो रिलेशनशिप थी वो बैलेंस नहीं थी, वी वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज अ लॉन्ग हिस्ट्री स्प्रेड ओवर नियरली 200 years. British rule resulted in huge drain of wealth from India in order to facilitate growing British industry with the supply of raw materials from India. Huge drain of wealth. They also encouraged commercialization of Indian agriculture to transform Indian economy into a British colony. So कैसे commercialization हुई, but हमारी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी थी? ग्रेट ब्रिटेन। तो जो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है एक तरह से, वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, हम उनके मर्जी पे थे। द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश colonial policy was deep on India even at the time of independence. So colonial exploitation, first point. Semi-feudal, semi-feudal एक रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप। आप फार्मिंग तो कर रहे हो, आप कल्टीवेशन तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड। आपको, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है जिसमें लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप है, वेयर द फार्मर, द कल्टिवेटर इज द टेनेंट एंड जमींदार इज द लैंडलॉर्ड। तो ऐसी एक रिलेशनशिप बना के छोड़ दी थी, सेमी फ्यूडल रिलेशनशिप। By the close of the British period, there were two aspects of the Indian economy. एक तो feudal system, land जमींदारी system, feudal system, land settlement system, जमींदारी system एक ही बात है। It gave birth to feudal relations, landlord-tenant relations. The landlords used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivators. Or second aspect of the Indian economy was introduction of the capitalist system. Industries आई थी, but concentrated in very few hands, concentrated in very few hands. तो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स दो टाइप के लोग होते थे, मतलब इनकम रेंज ड्रास्टिकली, देखा ना कि जो अमीर था वो बहुत ज्यादा अमीर था और जो गरीब था वो बहुत ज्यादा, गैप बहुत ज्यादा था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस, one capitalist and the other laborers, but capitalist बहुत small fraction, industries बहुत कम थी। So India inherited the features of both feudal and a capitalist system in the economy. A capitalist system is one where the producers are operating for profit motive, where the factors of production are owned by private individuals. एक होता है socialist system, where the factors of production are owned by the government and they are operating for welfare of the society as a whole. एक होता है capitalist system where the factors of production are owned by the private individuals and they are operating for profit motive. तो when India gained independence, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं प्रोड्यूस, मतलब गवर्नमेंट फैक्ट्रीज नहीं थी, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थी, तो मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम था। जो भी प्रोडक्शन हो रहा था ना वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही कर रहे थे, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कैपिटलिस्ट थे और लेबरर्स थी। तो हमने क्या, फ्यूडल एंड अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इनहेरिट किया था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट, growth rate of real aggregate growth rate of real output was less than 2%, growth rate of per capita income was 0.5%. बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद होना चाहिए। Backward economy, India was a backward economy. At the end of the British rule, Indian economy was backward and underdeveloped. What were the main reasons for backwardness?
low level of productivity, low per capita income, traditional methods, high birth rate, high death rate, mass illiteracy. Illiteracy rate, literacy rate. मैं पॉज करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, काफी सही भी देंगे. High birth rate, high death rate, mass illiteracy, depleted, depreciated. ध्यान से सुनेंगे, depreciation का मतलब क्या होता है. Depreciation is the fall in the value of an asset, machines, capital goods की बात हो रही है, due to wear and tear, passage of time, obsolescence. तो वो मशीन्स यूज तो कर रहे थे, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी उनकी मशीन्स को यूज तो कर रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे. रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो रही थी. तो रेगुलर मेंटेनेंस अगर नहीं होगी, होगा कि जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो. अगर होगा कि आपने कोई चीज लॉन्ग टर्म यूज करनी है तो आप उसको मेंटेन करके रखेंगे. अगर होगा कि नहीं नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, होने तो बर्बाद, तो उसको फिर आप एक्सप्लॉइट करोगे. तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, डिप्लीट करके छोड़ दिया. उनकी रिप्लेनिशमेंट के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए, एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी, मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया सब कुछ, जितना खींच सकते थे खींच दिया. Depleted economy is one where no arrangements have been made to replace the physical assets depreciated due to excessive use. कि जो assets depreciate हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए. अब जैसे एयर कंडीशनर है एग्जाम्पल, कि आप उसको सर्विस ना कराएं. आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी को सर्विस ना कराएं और यूज करे जा रहे हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. तो सर फिर ऐसा करा ही क्यों? तो लाइफ कम हो जाएगी. कह रहे रिपेयर कराने पे खर्चा होगा, हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना जिंदगी भर ये गाड़ी चलानी है. तो वो खर्चा अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसकी लाइफ को ही स्टेक पे डाल दिया. During the Second World War, Indian industries had to work beyond their capacities. ज्यादा शिफ्ट, मतलब कि कैपेसिटी आपकी 100 यूनिट्स पर आ रहा है, कह रहा है, और सिर्फ दिन में 6 घंटे चल सकती है, कह रहा 24 घंटे काम कराओ इनसे. Beyond capacity to meet the increased demand of plant, machinery, equipments for the war. However, यूज तो किया एक्सेसिव, उसको फिर भी रिप्लेस कर दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी. However, British rulers did not make any arrangement to replace the depreciated physical assets. As a result, British rulers had left a seriously depleted economy. Amputated, handicapped. The Britishers' policy of divide, तोड़ फोड़ के रख दिया, पार्टीशन करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया. Highly fertile land went to Pakistan and jute producing, majority of the jute producing area went to East Pakistan, which is now Bangladesh. तो amputation में वो वाला point आ जाएगा. Due to their policy of divide and rule, they always promoted discrimination among various groups. तो उन्होंने उनको convince कर दिया कि आपके भले के लिए यही better है. As a result, on the eve of independence, country was geographically divided into two parts. इसका नुकसान क्या हुआ? Partition of the country virtually disrupted the economy. How? Problem of rehabilitation of large number of refugees. बहुत लोग जो वहां से आए, अब उनको सेटअप के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो रिहेबिलिटेशन के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए, which was already short of resources. तो एक तो वो प्रॉब्लम हुई, दूसरा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर जूट एंड कॉटन मिल्स. हमारा तो रॉ मटेरियल चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, और तो इतने अच्छे रिलेशन तो थे नहीं कि ट्रेड बड़ी इजीली आपको सामान वहां से मिल जाएगा. प्रॉब्लम है. सो मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान, और फिर ये धीरे धीरे सारी फैक्ट्रीज को बंद ही होना पड़ा जो अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर पाए. तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मैं खुद बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने कॉन्ट्रडिक्टिंग रखे हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में भी जिस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है. तो उन्होंने बड़ा लिमिट कर दिया अपनी एक्सप्लेनेशन को. चेक ऑन फेमाइंस विद रिगार्ड टू रोड्स एंड रेलवेज, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन विद रिगार्ड टू कमर्शियलाइजेशन, और कमर्शियलाइजेशन का सिर्फ पहला एस्पेक्ट कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना. बट दिस डजंट चेंज द पॉइंट्स व्हिच वी लर्नड इन द
agricultural sector of the state of the agricultural sector during the British rule and on the eve of independence. उसमें बड़ी clearly detail में explain किया गया हुआ है what were the drawbacks of commercialization, long term drawbacks. ठीक है ना बेटा? तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए. अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके से यूज करना है, वहां पे आप फिट कर लेंगे. ढंग से नहीं पढ़ेंगे, और कभी ये कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी थी, कभी कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी फेमाइंस की, कभी कह रहे हैं कि कम हो रही थी. नहीं, कब कह रहे हैं वो? जब पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है बिकॉज ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. पेमेंट्स कब बढ़ गए? जब वो बात कर रहे हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, जब हो रहा है शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स. तो ये जरूरी है आपको पता होना कि कौन सी बात कब यूज हो रही है, किस कंटेक्स्ट में की जा रही है, तब प्रॉब्लम नहीं होगी.